Let's start. Why do businesses go global? ठीक है. What are we trying to understand over here? Businesses go global because of some reasons. ठीक है. सबसे पहला एंड सबसे मेजर रीजन तो ये रहता है कि योर डोमेस्टिक मार्केट्स बिकम इनएडिक्वेट. मीनिंग कि अब थक गए, बस हो गया. लोकल डोमेस्टिक हम लोग ने इंटरनल ट्रेड बहुत कर लिया. नाउ विल मूव ऑन टू एक्सटर्नल ट्रेड बियॉन्ड द कंट्री. बट दिस इज वन ऑफ द वेरी मोस्ट बेसिक, one of the most basic conditions that are given. All right, now let's understand this whole thing with the help of a case study type question. ठीक है. Case study in the sense Apple ले लेते हैं. Now Apple has operations in Africa. Sir, why Africa? Why Africa? Africa is resource rich. All right, resource rich मतलब resources are required. Silicon चाहिए, precious metals चाहिए for components in your chip. So basically raw material. तो directly source के पास चले जाते हैं. So what do you enjoy? You enjoy cost efficiencies and effectiveness. You get cheaper material by having global operations in Africa. समझ में आ रहा है? Now Apple has production processes in China. Why? Sorry. China. Cheap labor, cost effective labor. Alright, American company raw material ले रही है अफ्रीका से, प्रोडक्शन कर रही है चाइना में. Now it has recently opened one more store or one more manufacturing plant in India. Why? Because when they manufacture in China or when they manufacture in the US and when they export to India, what happens? Import. तो करना क्या है? Why? So what? इंपोर्ट ड्यूटीज होती है तो सो व्हाट, तुम ही भरोगे ना, उसको क्या करना है? प्राइस बढ़ जाता है तो कंज्यूमर खरीदते नहीं है. अभी इंडिया में एप्पल मैन्युफैक्चर कर रहा है, प्राइस कम हुआ क्या? उनका कॉस्ट तो कम हो गया. दे विल एंजॉय बेटर मार्जिन्स. देखो एक इम्प्रूव, मैंने वही बोला था, मार्केट डिसाइड्स द प्राइस, वी हैव टू डू बैकवर्ड कैलकुलेशन. दे आर डूइंग बैकवर्ड कैलकुलेशन. एवरीवन एक्सपेक्टेशन वाज कि ठीक है इट विल बिकम चीपर. नो, iPhone 13 was launched basic 80,000. This is also 14 is also 80, 15 was 80, 16 is also 80,000 roughly. बैंक ऑफर वो सब अलग करके. But now it is cheaper because it is locally manufactured, no duties. No duties to be paid. So by selling at the same price, value creation याद रखो, it's enjoying higher margins. Plus it becomes easier to export to countries like Bangladesh, Sri Lanka, alright, neighboring Asian countries या Indian subcontinent. Easy हो जाता है because all China से नहीं करना पड़ता है. You can have India as a manufacturing hub and you can send the products at multiple places. So by having it in India, they have reduced the transport cost, they've become closer to the market, they are enjoying economies of scale. By adding production plants, क्या होता है? You are increasing successively, producing at lower cost. And they can make it affordable. ठीक है? Now, sales का होता है. What the sales in the sense you open global stores. BKC में एक store खुल चुका है. All right, Apple has a store in BKC. So what is happening? Your market is getting expanded. There is growth. There are new opportunities and new markets, and your entire global supply chain becomes much smoother. Your product availability spreads. ना पहले एक हब था खाली चाइना, जो भी होता था चाइना से होता था. But now you have an additional player, additional manufacturer, which is India. Are you understanding? And there are company goes global. It is due to development of technology, outsourcing research and development, easy travel, easy connection, movement. All right, because now the whole has become a global market. So these are the reasons. So what are रीजंस? देखो केस स्टडी के अंदर अफ्रीका है, रॉ मटेरियल्स है, एक्सेट्रा. द वंस विच आर इन रेड आर द रीजंस. समझ में आ रहा है? कॉस्ट एफिशिएंसीज, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, चीपर रॉ मटेरियल, इंप्रूव्ड कैश फ्लो. आर यू अंडरस्टैंडिंग? इंप्रूव्ड कैश फ्लो, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट्स,
growth, time and distance. So using Apple का example, you can easily learn कि sir why did it go का cheaper raw material, cost efficiencies. Why is it producing in China cheaper labor? Again, cost efficiencies. Why did it go to India or manufacturing plant in India closer to the market? All right, growth, reduction of time and distance. Like this, if you list down all of the reasons, you will get marks. And छोटा सा एक example, it will be perfect. ठीक है, समझ में आ गया? Please write this down. खत्म हो गया अपना इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस. पहले फर्स्ट हाफ लिख लो, फिर मैं नीचे करता हूं. ठीक है, वो नहीं सुनाई नहीं दे रहा बेटा. हो ना, सब ग्लोबली तो है. डिपेंड करता है कार मैन्युफैक्चरर को. अगेन इट विल डिपेंड, बिकॉज इफ यू इन्वेस्ट हेविली कार मैन, देखो द स्पेस रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर फोन्स एंड द स्पेस रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर कार्स आर डिफरेंट. बट इफ देयर इज एन अपफ्रंट एडिशनल कॉस्ट, all right, which is much more than their expectation, so what can happen, it can increase the price of good rather than decrease. समझ में आ रहा है? मैं ये जब अलायंस करूंगा ना, ये पॉइंट कवर हो जाएगा. When I do alliance, this point will get covered. मुझे याद दिलाना तब. I think this is better. बोलो. हाँ सॉरी बेटा.
गया बेटा ये? हो गया? डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, डन। चलो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। Key success factors. All right. Now, what do you mean by key success factors? Everyone has heard of Hindustan Unilever? Yes. What do they make? Everything. Okay. बोलो क्या everything? FMCG products such as soaps, okay. कौन बोला स्टेशनरी? HUL का कौन सा बुक्स आता है बेटा? HUL का कोई बुक्स नहीं आता, ठीक है, क्लासमेट ITC। नाउ टूथपेस्ट बनाता है सर, शैम्पूज वगैरह बनाता है, साबुन बनाता है, ऑल राइट, डिटर्जेंट बनाता है, कपड़े धोने का भी साबुन बनाता है, ऑल राइट। नाउ पे अटेंशन। सुना है कभी तेरा साबुन स्लो है क्या? ओके, दाग अच्छे हैं, सुना है ये सब? कौन सा ब्रांड है? सर्फ एक्सेल, ऑल राइट। और क्या सुना है? पूरा कोई नया ऐड है क्या? क्या, कौन सा प्रोडक्ट का है? सर्फ एक्सेल का है, ओके ओके, ऑल राइट। संतूर मम्मी, हाँ मम्मी लोग याद है लोग को बराबर, हाँ मम्मी मम्मी, यस, ऑल राइट। और क्या याद है? डव याद है? डव, ऑल राइट, दूध डालता है वो लोग ऐसा अंदर, ऑल राइट। नाउ हाँ, डव सोप, शैम्पू, कितना दूध रहता है डव में? ऐड के हिसाब से याद करो, 1/4 मिल्क ऐसा बोलते हैं ना लोग, विद द गुडनेस ऑफ 1/4 मिल्क, ठीक है। चाय क्या, कौन बोल रहा है चाय बनाएगा उसमें से, ठीक है, ऑल राइट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, ओके, ऐसा कुछ है क्या डव से आपके सब प्रॉब्लम्स चले जाएंगे, या बंटी के साबुन से आप हाथ धोगे तो आपको बीमारियां नहीं होगी, ऐसा कुछ है? नहीं। बट यू रिमेंबर दीज एड्स,
राइट, संतूर मम्मी। पेयर्स का क्या है? ग्लिसरीन, वो ऐसा लाइट में देखते हैं, बराबर। वो पुराने एड्स अभी भी चलते हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज that a company in order to be successful has to decide or has to come out with couple of attributes, factors, features. Alright, ये जो factors है तो मतलब attributes which make it different or which are responsible for its success rather than the product itself. यार टूथपेस्ट ऐसा थोड़ी ना है कि वो पास आओ, यू रिमेंबर लास्ट टाइम भी अपन ने डिस्कस किया था, ऐसा बोलेगा बास आ रहा है, ठीक है, क्लोजअप, ऑलराइट। सो द प्रोडक्ट इटसेल्फ, द मार्केटिंग कैंपेन्स आर सो ब्रिलियंट दैट फॉर HUL द प्रोडक्ट से ज्यादा द मार्केटिंग बिकम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस। Can you say HUL is selling you a superior product as compared to the competitor? मतलब आज अगर आप संतूर एक साबुन ले लो और दूसरा सैंडलवुड, कौन सा साबुन है? सैंडलवुड, मतलब संतूर है सैंडलवुड ना, हाँ, मैसूर सैंडल एंड संतूर या मोती, यस, मोती बेटा कुत्ते का नाम नहीं है, साबुन का नाम है मोती, ठीक है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इज इट दैट यू विल गेट मोर बेनिफिट्स फ्रॉम यूजिंग संतूर एंड लेस बेनिफिट्स फ्रॉम यूजिंग मोती? नो, द प्रोडक्ट्स आर सिमिलर इन द FMCG ग्रुप। यार तुम कोई भी टूथपेस्ट उठा लो, कोई भी साबुन, उनका बेसिक फंक्शन इज क्लेंजिंग, क्लियर है? कोई वो देने नहीं वाला, कुछ डव लगा के आपका कुछ भला नहीं होने वाला। But see, look at them. Lifebuoy is sold by them, Dove is sold by them, but look at the approaches, they are so different. Lifebuoy is sold as a very entry level standard product, whereas Dove is sold as a premium product. Surf Excel दाग अच्छे है। Are you understanding? अब डिटर्जेंट है यार, कौन सा सुपीरियर कौन सा इंफीरियर we cannot say, but because of its very strong marketing, you can say marketing is one of the key success factors for HUL. For Amazon, your logistics and distribution या supply chain management is its key success factor. समझ में आ रहा है? रीच, अवेलेबिलिटी, ये सब की सक्सेस फैक्टर्स हो जाते हैं। पेप्सी हम टेस्ट के लिए पीते हैं, एक आदत होती है अवेलेबिलिटी। हर जगह, हर दुकान, जहां फ्रिज है वहां पेप्सी या कोक आपको मिलेगा। लुक एट द अवेलेबिलिटी, ये की सक्सेस फैक्टर्स हो जाता है। सो व्हाट इट इज अ सम टोटल ऑफ हाउ मेनी एट्रीब्यूट्स? 3 to 5, नॉट मच। ऐसा नहीं हम 10 में एक्सपर्ट है, नहीं यार। देयर आर 2-3 थिंग्स दैट वी डू एंड वी डू इट डैम वेल, दैट विल बी कॉल्ड एज की सक्सेस फैक्टर। An organization may have 15 different other factors or attributes. ये भी अच्छा करता है, ये भी अच्छा करता है, ये भी अच्छा करता है, बट हो सकता है कि ऐसा other companies are also doing. But these are those factors, it's closely related to your competitive advantage. Alright, competitive advantage, मतलब key success factor is one of the reasons you will have competitive advantage. Are you understanding now? So you have to develop them. हो सकता है तुम्हारा वेबसाइट बहुत अच्छा है, तुम्हारी ब्रांडिंग बहुत अच्छी है, तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छा है। पार्ले जी, उनका प्रोडक्शन बहुत अच्छा है। प्रोडक्शन बहुत अच्छा मतलब टेस्टी बिस्किट नहीं, कॉस्ट एफिशिएंट। कुछ भी हो, कितना भी इन्फ्लेशन आ जाए, वी आर प्रोड्यूसिंग एट सक्सेसिवली लो, हमको इन्फ्लेशन इफेक्ट ही नहीं करता है। दे आर कैंसिलिंग आउट द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन बाय हैविंग लार्ज लेवल ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, वेरी हाई। खुद भी मैन्युफैक्चर करता है, आउटसोर्स भी करता है पार्ले जी। नॉट ऑल पार्ले जी बिस्किट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी इटसेल्फ। अलग जो बिस्किट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो भी करते हैं। कोई पैकेट में लिखेगा प्रोड्यूस्ड बाय पार्ले, कोई पैकेट में लिखेगा प्रोड्यूस्ड बाय ABC फॉर। तो वो स्केल, दैट बिकम्स देयर की सक्सेस फैक्टर, दैट विल डिटरमाइन यार whether the company is successful, whether the company earns profit, whether the company earns loss. What is Apple's key success factor? ब्रांडिंग यार, सब कुछ। ऐसा है कि एप्पल से बेटर कोई प्रोडक्ट
नहीं है, नो है, होंगे, बट ब्रांडिंग, हाँ डिजाइन में है अच्छा, मार्केटिंग में है अच्छा, है बहुत सारी चीजों में वो अच्छा है, बट आज वो ब्रांडिंग एंड 2-3 थिंग्स दैट इट बिकम्स इट्स की सक्सेस फैक्टर, ठीक है, एंड दे कैन कीप चेंजिंग एज ऑफ कोर्स, जैसे जैसे टाइम जाता है वैसा यू हैव टू अडेप्ट। ऑलराइट, आज मार्वेल भी एनिमेटेड मूवीज बनाता है, डीसी भी एनिमेटेड मूवीज बनाता है। डीसी इज व्हाट, बैटमैन, सुपरमैन, वंडर वुमन, ये सब, वंडर वुमन बस वही मालूम था, बस उधर ही तुम लोग का दिमाग अटक जाता है, वंडर वुमन। और यहां पे ब्लैक विडो ठीक है, ब्लैक विडो है, स्कारलेट विच है, ठीक है, देन आयरन मैन, थॉर, ये वो, स्पाइडरमैन, ठीक है। नाउ विच इज बेटर इन टर्म्स ऑफ मूवी मेकिंग, वाई? एनिमेट तो दोनों करते हैं, पैसा दोनों के पास है, मार्केटिंग दोनों करते हैं, बट आज पॉपुलर है क्यों? देखो तुम फैंस हो, चीज है ना, बिजनेस हिसाब से देखो, मैं तो डीसी फैन हूं, बट मैं मानता हूं कि यार मार्वल मूवीज आर बेटर, डीसी मूवीज आर नॉट फॉर एवरीवन। तुम्हारा एकदम ऐसा क्रेजी ब्लाइंड फाइन फॉलोइंग होगा तो यू विल एंजॉय, वो तो तब चला गया, खत्म। कॉमिक्स, यस, डार्क नाइट का तो बहुत टाइम हो गया यार, उसके बाद एवेंजर्स ने बहुत कमा लिया, ठीक है, बट व्हाई इज एवेंजर्स, मतलब योर मार्वेल मोर सक्सेसफुल? स्टोरी लाइन, उन्होंने बस स्टोरी लाइन को पकड़ के रखा है ना। देखो एनिमेशन तो सब कर सकते हैं, बट उनकी जो क्लोज नेट पूरा जो सीरीज निकला था एवेंजर, स्टार्ट से लेके एंड में क्या था, लास्ट एंड गेम, ब्रिलियंट। एंड उस हिसाब से लोग ने इंडिपेंडेंट भी निकाला, बिजनेस क्रिएट किया ना। उसके बाद उन्होंने इंडिपेंडेंट छोटी छोटी सीरीज निकाली कि आफ्टर एंड गेम क्या हुआ, हाँ व्हाट इफ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये की सक्सेस फैक्टर है। जब तुम वही लेवल पर हो, उतना ही रिसोर्सेज है, तो यू विल हैव टू डिस्टिंग्विश योरसेल्फ, ठीक है ना। हाउ टू आइडेंटिफाई? 3 वेरी सिंपल थिंग्स। यू हैव क्रिटिकल प्रोडक्ट फीचर्स, मतलब इफ यू हैव अ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, द यूनिकनेस शुड बी देयर, ठीक है। लास्ट, रिसोर्स मैनेजमेंट, हाउ यू यूज योर फंक्शंस। यहां पे मैंने लिखा है टेक्नोलॉजी, ह्यूमन कैपिटल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इट कैन बी मार्केटिंग, फाइनेंस, वॉट एवर, ऑलराइट। एंड पार्लेजी में प्रोडक्शन, ठीक है। एंड सस्टेनेबिलिटी, मतलब इट शुड बी फॉर द लॉन्ग टर्म। समझ में आ रहा है? की सक्सेस फैक्टर्स, अगेन इंपॉर्टेंट, इट कैन कम फॉर द एग्जाम। लिखा नहीं है बट लिख कर दो, क्यों अभी ये सब पूछा नहीं ना लोग ने, अब दीज विल बिकम स्टार्ट बिकमिंग इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। व्हाट की सक्सेस फैक्टर? सम ऑफ हाउ मेनी फैक्टर्स? 3 to 5 क्रिटिकल, तो सम ऑफ 3 to 5 क्रिटिकल एट्रीब्यूट। They are changing, they keep changing, some of 3 to 5 क्रिटिकल, ठीक है। कांस्टेंट डायनामिक, मतलब क्या? चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। सबसे पहला क्रिटिकल रिसोर्स। बेटा देखो, ऐसा नहीं कि तीनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। यू कैन फाइंड KSF इन मेनी ऑफ दोज एरियाज। आइदर योर प्रोडक्ट इज क्रिटिकल, आइदर योर रिसोर्स मैनेजमेंट इज क्रिटिकल, और इट्स सस्टेनेबिलिटी। यू कैन कैरी ऑन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। समझ में आ रहा है? प्लीज राइट दिस डाउन बेटा। हो गया की सक्सेस फैक्टर्स।
गया? One last time. Competitive landscape. What do you mean by landscape? Layout. All right. Landscape means layout. So competitive landscape means understanding the layout of the competition. So in definition, what will you write? Competitive landscape consists of the competitor, so their activities, their strength, weaknesses, and opportunities and threat. Now in order to understand the competition, what will identify the competitor? All right, so Blinkit now Swiggy से मुझे directly करना है. Swiggy started Instamart से, then Blinkit came, then Zepto came. All of this was in response. All right, so identify the competitors, who are they and what is their size. Once the competitors have been identified, what do you do? Understand. That is what collection information. So क्या देखेंगे हम लोग? मिलेगा every, right? The answer to the question is what are the products and services. Detailed analysis. What is DMart doing? What is Big Bazaar doing? DMart, yes, large scale है, but वो variety नहीं मिलता जो Instamart दे रहा है. If you actually look, every category they are giving more variety, more options. All right, third, strength, weakness, together. Strengths में financial position, marketing strategy, next move, why do the customers buy the product? Some of the questions. There can be more. Other area and putting everything together. Major इसमें है exploiting the weakness. जो नहीं कर पा रहे हैं ना your competition, you should be able to do. ये major area है. स्ट्रेंथ को तुम इतना डायरेक्टली टैकल नहीं कर सकते, बट वीकनेस को एक्सप्लॉइट करना बिकम्स वेरी इजी. ठीक है, ऑल राइट. हो गया ना? आई थिंक एक बार बुक देख लो. हैव आई मिस्ड एनीथिंग? बिकॉज मैंने जंप किया था ऊपर नीचे ना, एंड आई हैव फॉरगॉटन माय आईपैड टुडे. सो कैसे पढ़ा रहे हो? पढ़ा रहा हूं. जुगाड़ देखो, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे. कुछ है बच गया है कोई एरिया, मतलब टेक्स्ट बुक में देखो, कुछ ऐसा लग रहा है नया, कुछ देखा ही नहीं हमने. हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ पेज नंबर पेज नंबर 16 स्टार्टिंग में. हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क. ऑल राइट, ठीक है. हाँ, वो वैसे भी यहां नहीं पढ़ाना है. एनीवे, राइट डाउन कनेक्टेड विद चैप्टर 5. रिस्क है ना जहां पे, कनेक्टेड विद चैप्टर 5. व्हेन आई डू चैप्टर 5 आई विल बी डूइंग दैट. बाकी हो गया, मतलब रिपीटेटिव. यू स्टडी वन ऑफ द प्लेसेस, वी विल नॉट स्टडी 3 टाइम्स. ठीक है. वैल्यू चेन एनालिसिस, यस, विल डू दैट. हाँ, वैल्यू चेन एनालिसिस वो चैप्टर 5 में हो जाएगा, बिजनेस एनवायरनमेंट. ठीक है. वैल्यू चेन एनालिसिस इज वन थिंग विल कीप पेंडिंग. नाउ चैप्टर 3. ऑलराइट, चैप्टर 3 में क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर?
स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, इंटरनल एनवायरमेंट. ओके, इसमें भी अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है, बट द इंटायर चैप्टर इज फोकस्ड मोर टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग और एनालाइजिंग व्हाट इज हैपनिंग इंटरनल the organization. There we saw creating value, analyzing the industry, all right, analyzing the international environment, okay, competitive landscape, key success factors, ये सब चीजें हमने उधर देखी. अब यहां पे we are trying to see what happens at the internal level. ठीक है, अब माइकल पोर्टर्स 5 फोर्सेस एनालिसिस था, यहां पे माइकल पोर्टर्स जेनेरिक स्ट्रैटेजी. देखो माइकल पोर्टर इतना एक्सपर्ट है, उसके एटलीस्ट 3 कॉन्सेप्ट्स अपन ने पढ़ लिए. पोर्टर्स 5 फोर्सेस एनालिसिस, फिर एक वैल्यू क्रिएशन पढ़ेंगे, एंड लास्ट वाला थर्ड वाला हिज जेनेरिक स्ट्रैटेजीज. ठीक है, नाउ दे आर आल्सो कॉल्ड बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज, एंड दिस यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ चैप्टर 5 अंडर द ओल्ड सिलेबस. So new syllabus में there used to be chapter 3, 4 and 5. No, not 3, 4, 5. 4, 5 and 6. 4 corporate level strategies, 5 was business level strategies, 6 was functional level strategies. Chapter 6 उन लोग ने पूरा आपके लिए delete कर दिया है. It was a little annoying also, so I'm happy chapter 6 निकल गया. उसके अंदर marketing, finance, जो important अच्छा part था, they have combined with chapter number 3. Other things they have gotten rid of. ठीक है, यहां पे नई चीजें डाले भी है, पुरानी चीजें रिटेन भी की है. It's not a lengthy chapter and good and interesting. ठीक है, now Michael Porter, now we have to understand corporate does certain activities, builds certain strategies, builds certain responses that we will see in chapter 4. That is called a strategic choice. जिसमें corporate level क्या करता है. यहां पे we are trying to focus more on the business level. All right, corporate level. Short, if I have to explain to you what is corporate level and what is business level, the CEO, the top management is corporate level. Ab do not confuse this or mix with Henry Fayol, please, for the love of God. वो triangle बनाया था ना, वो Henry Fayol का 12th standard वाला, वो ये वो नहीं है. All right, good. Unlearn that. Do not confuse, do not mix. When we do strategic levels, we are corporate, business and functional. All three are decision makers in different capacities. The corporate is concerned with the overall direction and growth of the firm or the business. The business level is concerned with one predetermined activity. And functional level is responsible for the entire function, जैसे marketing, finance. Employees की बात नहीं कर रहा. Henry Fayol used to talk about employee division, because according to him, the lower consists of employee staff. यहाँ पे हम employee की बात ही नहीं कर रहे. At the functional level, when I talk about marketing manager, he is the person who is responsible, or he is heading the entire marketing function. Are you understanding? उसके नीचे फिर एम्प्लॉय वगैरह आएंगे. And when I use the word manager, it doesn't mean, when I use the word manager, it doesn't mean that what do we say, designation. बोलते ना, I'm a manager with so and so company, I'm a manager with so. No, manager means any person. Is Sundar Pichai a manager? Yes, he is in a person. He's a top manager. You can say he is the person who takes decisions which has an impact on the future. समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है.